किसी بھی عورت کے لیے شرمندگی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے کردار پر شک کرے۔ آصف کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آج رات کے 8 بجے حسب معمول میں اور آصف اپنے اپنے کمرے میں مصروف تھے کہ میرے فون پر کسی کا میسج آیا۔ آصف نے گھور کر یوں دیکھا جیسے اسے مجھ پر شک ہوا ہو۔ شرارتاً میں نے بھی اپنا فون اپنے پاس رکھ لیا اور آصف کہنے لگا اپنا فون مجھے دو، دیکھوں تو کس کا میسج ہے۔ میں نے کہا نہیں دکھاؤں گی، تم خواہ مخواہ مجھ پر شک کرتے ہو، مجھ پر اب یقین کرنا ہی پڑے گا ورنہ مجھے چھوڑ دو۔ میری اس بات کو انہوں نے سنجیدگی سے لے لیا اور بولے اگر تم نے مجھے ابھی اپنا فون نہ دیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا، جو شخص مجھے اتنی سی بات پر چھوڑ سکتا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، دے دو طلاق، اچھا ہو جائے گا، میری جان چھوٹے۔ تم سے مجھے بھی شوق نہیں ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے کا۔ بس یہ کہنا تھا کہ آصف کو غصہ آ گیا، انہوں نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور غصے سے بکتے جگتے گھر سے چلے گئے۔ میں سوچتی رہ گئی کہ آصف کس قدر بے اعتبار شخص تھا۔ فون پر دیکھا تو کمپنی کا میسج تھا، تب پچھتانے لگی کہ کاش ان کو دکھا دیا ہوتا۔ بہرحال میرے دل میں پہلے ہی کوئی چور نہ تھا، اب بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا فون چھپایا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ واقعی ہم دونوں کی راہیں جدا ہو چکی ہیں، تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہماری 2 سال کی رفاقت تھی اور ان 2 سالوں کو ہم نے محبت سے بتایا تھا، مگر آج معمولی سی بات پر وہ بے وفا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، میری ہمت نہ پڑی کہ والدین کے گھر جاؤں، وہ بھی اس غمگین حالت میں مجھے دیکھ کر یقیناً پریشان ہو جاتے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ آصف جلد ہی گھر لوٹ آئے گا اور ایسا ہی ہوا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ باہر سے آصف کے قدموں کی آواز آئی، یقیناً اب وہ پچھتا رہا ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا لیکن وہ تو میرے کمرے کی طرف نہ آیا، آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ بلب بند ہونے کی آواز آئی تو جیسے میرے دل پر کسی نے پتھر گرا دیا ہو۔ وہ سو گیا تھا، یقیناً اس نے صبح سویرے اٹھنا تھا۔ میں بھی بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، سوچ رہی تھی کہ صبح ابو امی کے گھر چلی جاؤں گی۔ آنکھوں سے نیند کافی دور تھی، میرے ذہن میں ہماری شادی کی یادیں چل رہی تھی، کیسے آصف نے اپنی دیوانگی کی بنا پر مجھے اپنایا تھا۔ آصف مجھے بے پناہ چاہتے تھے، انہوں نے مجھے ایک ہی نظر دیکھا اور مجھ پر فدا ہو گئے تھے۔ پھر اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیج کر رشتہ بھیجا اور میرے والدین کے انکار پر انہوں نے خودکشی کی کوشش کی، تب ماں باپ نے بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور آصف کے ماں باپ کی درخواست پر میرا رشتہ آصف کے ساتھ کر دیا۔ ویسے بھی ان میں کوئی بڑائی تو نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ خاندان سے باہر کے لوگ تھے اور ہمارے خاندان میں زیادہ ترجیح اس چیز کو دی جاتی ہے کہ لڑکا خاندان کا ہو۔ بہرحال آصف کی اتنی دیوانگی اور محبت ایک پل میں ختم ہو گئی۔ میں انہی یادوں کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ انہوں نے دروازے پر دستک دی اور اب شرمندہ ہو رہے تھے۔ دروازہ کھولو ناگین، مجھے اپنی بات کا بہت دکھ ہے، خدا کے لیے ایسا مت کرو، اب بس کر دو لڑائی۔ آصف آپ سمجھ نہیں رہے، یہ معمول کی لڑائی نہیں ہے، ہماری طلاق ہو چکی ہے، میں اب آپ پر حرام ہوں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اب آپ کے لیے حرام ہوں؟ اور میں نے روتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز بھی بھر گئی تھی۔ کافی دیر تک میری منتیں کرتے کرتے دروازے بجاتے رہے، مگر اب وہ میرے لیے غیر محرم ہو چکا تھا۔ میں ایک مرد کی وجہ سے اللہ کی نظر میں گناہگار ہو جاؤں؟ میں نے دروازہ نہ کھولا، تھک ہار کر وہ بھی بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ گھر میں مکمل خاموشی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ آفس چلے گئے ہوں گے میں نے دروازہ کھولا، کچن میں آئی تاکہ کچھ کھا پی لوں۔ اتنے میں آصف بھی آ گئے، ان کا انداز والہانہ تھا۔ وہ تو اب بھی مجھے اپنی بیوی سمجھ رہے تھے، مگر مجھے اپنی حدود کا علم تھا۔ میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر اپنا سامان وغیرہ اٹھایا۔ ایک بار پھر منت کی، بولے ہماری طلاق کا کسی کو علم نہیں، ایسی غلطیاں تو مردوں سے ہو ہی جاتی ہیں، تم یہی رہ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا، ہم اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے۔ مگر میں نے گوارا نہ کیا کہ ایک غیر مرد کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رہوں۔ صبح اپنا سامان لے کر ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اماں ابا کی پہلے ہی پریشانیاں ہزار تھیں، یہ سب کچھ اس انداز سے ملے کہ میں بھی اپنی طلاق کا نہ بتا سکی۔ امی نے پوچھا تو بتایا کہ آصف کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں، میں اکیلی تھی اس لیے کچھ دن کے لیے ادھر آ گئی۔ امی ابو کو تو میں نے مطمئن کر لیا تھا، مگر میرا دل خود بے چین تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں آصف کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتی۔ میکے میں رو رو کر میری آنکھیں لال ہو چکی تھی، مگر ابھی تک کسی کو اپنا غم نہ بتایا تھا۔ امی ابو کو بھی حقیقت کا علم نہیں تھا، مگر دل کو یہی سوچ کھائی جا رہی تھی کہ میں یہاں کتنی دیر رہوں گی، ایک دن ان کا پتہ چل ہی جائے گا، پھر غم کا اتنا بڑا
बड़ा पहाड़ कैसे बर्दाश्त करते हैं ये लोग। अगले दिन मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि आसफ का फोन आ गया। वो अब भी मिन्नतें कर रहे थे कि तुम मान जाओ। इन्हें शायद अब भी समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझे तलाक दे चुके हैं और अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं दोबारा इनके साथ बीवी बनकर रहूं। आसफ के मजबूर करने पर भी मैं ना मानी। इन्होंने एक अनोखी बात कही, अब अगर तुम एक हफ्ते के अंदर घर वापस ना आई तो मैं किसी और औरत से शादी कर लूंगा। ये बात सुनकर मैं तड़प कर रह गई, मगर अब हमारा रिश्ता ही क्या रह गया था कि मैं किसी किस्म का हक जताती। मैंने कह दिया कि अगर आपको कोई अच्छी औरत मिले तो भले दूसरी शादी कर ले, मैं तो उम्र भर आप ही के नाम बैठी रहूंगी। ये सुनकर आसफ भी बेताब हो गए। इनको मेरी मोहब्बत का इल्म हो गया था कि मैं इन्हें कितना चाहती हूँ। तभी अगले रोज घर पर दस्तक हुई। अम्मा ने दरवाजा खोला तो सामने आसफ खड़े थे। अम्मा हैरान होकर पूछने लगी कि बेटा तुम तो शहर से बाहर गए थे। नादाम होकर बोले कि मैं वापस आ गया हूँ और नागीन को लेने आया हूँ। अम्मा अब्बा के सामने मैंने पहले भी इस बात का इजहार न किया था कि हम दोनों के बीच क्या हो चुका है, तब भी मैंने इनका भरम रखा। अम्मा कहने लगी कि बेटी बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, तुम अपने शोहर के साथ चली जाओ। आसफ भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। मैंने सोच लिया कि अभी घर से निकल जाऊंगी, आसफ के साथ घर से निकलूंगी, फिर किसी दारुल अमान में पनाह लूंगी। तभी इनकी गाड़ी में आकर बैठ गई। आसफ बड़े नादाम थे। कहने लगे कि मैंने इस सब का हाल सोच लिया है, हम दोबारा मियाँ बीवी के बंधन में बंध सकते हैं अगर तुम थोड़ा सा तावन करो। कैसा तावन आसफ? मैंने इन्हें हैरत से देखा। तुम तो जानती हो कि जब मियाँ बीवी की तलाक हो जाती है तो फिर इनके लिए एक ही रास्ता रह जाता है। मुझे मेरे दोस्त ने बताया है कि अगर तुम्हारी बीवी किसी और से कुछ दिन के लिए निकाह कर ले तो दूसरे शख्स से तलाक लेकर हम दोबारा एक हो सकते हैं। आसफ की बात सुनकर मैं काम कर रह गई। आसफ आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और से निकाह करूं और हर उसके साथ चंद दिन रह भी लूं? मैं कोई खिलौना तो नहीं हूं। आपने ये सोचा भी कैसे? इनकी संगदिली देखकर रो पड़ी। समझने की कोशिश करो नागीन, तुमसे ज्यादा ये मुश्किल बात मेरे लिए है। एक मर्द ये कैसे गवारा कर सकता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ रहे? लेकिन ये कुदरत का कानून है कि इसने मर्द के गुस्से की सजा यही तजवीज की है कि वो अपनी गैरत पर ये बात गवारा करे। मुझसे भी गलती हो गई। काश इस बात का अंदाजा पहले होता तो मैं उस दिन ये हरकत ना करता। तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जरा सा शक्की मिजाज हूँ, तुम बर्दाश्त कर लेती तो क्या होता? आज हम इस मुश्किल में तो ना फंसते। आसफ अपनी गलती का इल्जाम मुझे दे रहे थे। बहरहाल गाड़ी का सफर खत्म हो गया। आसफ ने गाड़ी रोकी, मुझे घर के अंदर चलने का कहा। मैंने कहा मैं घर में नहीं जाऊंगी, मुझे किसी दारुल अमान में ड्रॉप कर दो। तब इन्होंने एक और कहानी सुना डाली। बोले मेरे ऑफिस में एक लड़का है, गरीब और यतीम है, उसे कोई भी कंपनी नौकरी देने को तैयार नहीं थी। मैंने उस लड़के को न सिर्फ नौकरी दी बल्कि उसे काम भी सिखाया। वो यतीम है, मुझे अपना बड़ा मानता है। वो लड़का बहुत भरोसे वाला है। आसफ की बात मुझे सारी समझ आ रही थी। वो तुम्हें वक्त पर तलाक दे देगा, मैं जानता हूँ उसे। वो मेरी हर बात मानता है, तुम्हें इज्जत से रखेगा। तुम्हें क्यों घबरा रही हो? चंद दिन की तो बात है, इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आसफ मुसलसल इसरार कर रहे थे कि मैं उनके 17 साला मुलाजिम से निकाह कर लूं, फिर हम दोबारा इस रिश्ते में बंध जाएंगे, जबकि मैं इस सब पर राजी न थी। तब आसफ ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा और जिंदगी भर तड़पती रोती रहोगी। मैं इनकी जनूनी तबीयत से वाकिफ थी। मजबूर होकर मैंने सर झुका लिया और इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था, मगर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आसफ ने गाड़ी अगले मोड़ पर डाल दी। वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे कि आधे घंटे में हम उनके ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने फोन करके उस लड़के को अपने ऑफिस से बुला लिया। 15 मिनट बाद एक दुबला पतला सा नौजवान बैरूनी कमरे से अंदर दाखिल हुआ और उस लड़के को देखकर ही मेरी समझ में आ गया कि ये कितना काबिल भरोसा है। इसके चेहरे के तासरात और इसके मुझे देखने का अंदाज बता रहा था कि ये लड़का इतना भी मासूम और ताबेदार नहीं है जितना कि मेरे शोहर को लगता है। वो हमेशा लोगों पर भरोसा करते आए थे, मगर लोग इन्हें ऐन वक्त पर धोखा दे देते थे। मैं जानती थी कि ये लड़का भी काबिल भरोसा नहीं है, और फिर मुझे इस बात का अंदाजा तब भी हुआ जब आसफ की सारी बात समझाने पर लड़के की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। इसके लिए तो ये एक सुनहरी मौका था कि वो अपनी हर बात मनवा सके। मैं जानती थी कि निकाह के बाद वो
वो आसफ को ब्लैक मेल करेगा। इसकी शक्ल सूरत और बात का अंदाज इंतहाई आमियाना था और काफी मतलबी लगता था, मगर आसफ को न जाने क्यों इस पर भरोसा था। मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। कुछ ही देर में हम तीनों गाड़ी में आकर बैठ गए। आसफ गाड़ी चला रहे थे कि ये लड़का इनके साथ ड्राइविंग सीट के साथ बैठा था, जबकि मैं पिछली सीट पर बैठी थी। अपने नसीब पर आंसू बहा रही थी कि हम लोग मौलवी साहब के घर पहुंच गए। मौलवी अदील मेरे शोहर को इससे पहले नहीं जानते थे, मगर इनके बारे में मशहूर था कि ये लोगों की मदद करते हैं, जबकि इनकी बीवी के बारे में भी ये लोग यही कहते थे कि वो एक रहमदिल खातून है। अलामा अदील और इनकी बीवी को तकरीबन सारा मोहल्ला ही जानता था, मगर वो हमें ना जानते थे। इनके घर पहुंचकर हमने दरवाजे पर दस्तक दी। मौलवी अदील ने हमें मेहमान समझकर अपने घर में बिठा लिया। तब मेरे शोहर ने इनको एक फर्जी कहानी सुना दी। कहा कि मैं इस लड़के और लड़की का निकाह करवाना चाहता हूँ। इन दोनों का सरपरस्त बनकर इन दोनों को एक पाक और मुकद्दस रिश्ते में बांधना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इनके घर वाले इनकी शादी के खिलाफ हैं, इसलिए आप इनका निकाह पढ़वा दीजिए। मौलवी साहब एक सारी हकीकत मालूम न थी, जबकि मेरे बहते आंसू कुछ और ही कह रहे थे। इन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि मैं इस निकाह पर राजी हूँ, तो मैंने उनको हामी भर ली। अपने शोहर के खौफ से मैंने रजामंदी जाहिर कर दी, मगर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। तब अंदर से मौलवी साहब की बीवी आ गई और बोली, लड़की को अंदर मेरे साथ भेज दे। अलामा साहब ने मुझे अपनी बेगम के पास भेज दिया। मैं इनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सारी कहानी इनसे कह दी और मेरी बात सुनकर वो अपने कानों को हाथ लगाने लगी। बेटी, तुम और तुम्हारा शोहर किस जहां में रहती हो? तुम लोग मुसलमान भी हो या बस कलमा पड़ा है? इस्लाम की तालीमात के बारे में इंसान को खुद इल्म होना चाहिए, ना कि हर एरे गहरे से पूछ ले। अपने शोहर को समझाओ कि पहली शादी की इद्दत पूरी किए बिना औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्या इसे इतनी सी बात नहीं मालूम? और फिर यह कि अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि मियाँ बीवी तलाक के 3 महीने में आपस में रजू कर लेते हैं तो तलाक नहीं होती। कहा तुमने अपने शोहर को ये बात नहीं बताई? मैंने नफी में सर हिला दिया। सच तो ये है कि मैंने कभी दीन के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, और आसफ की दीनी मामलात तो मुझसे भी कमजोर थे। अलबत्ता मुझे मोटी मोटी चीजों का इल्म था जिस पर मैं अमल भी करती थी। इसी दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई और मौलवी साहब की बीवी ने पहचान लिया कि मैं उम्मीद से हूँ। इनके चेहरे पर खुशी के रंग खिल गए। तो लो भाई, तुम्हारी तो तलाक ही नहीं हुई, तुम उम्मीद से हो। इनकी बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानती थी। तब इन्होंने तस्दीक के लिए मोहल्ले से दाई को बुलाया। इसने भी ये बात बता दी कि पेट से हूँ। ये बात सुनते ही मौलवी साहब की बीवी खुश होकर उठी और बाहर का दरवाजा खोला और बाहर जाकर अपने शोहर को सारी बात सुना दी। मौलवी अदील ये सुनते ही गुस्से में आ गए और इन्होंने मेरे शोहर को अच्छी खासी सुनाई और बोले, दीन के मामलात का अगर इल्म ना हो तो इंसान को कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम अपनी बीवी का हलाला करवाने जा रहे हो तो कम से कम मुझे आगाह कर देते, भला अपने वकील से भी कोई बात छुपाई जाती है। मौलवी साहब की बात दुरुस्त थी। मेरे शोहर आसफ अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे थे। वो अपने दोस्त से सुनकर निकाह तो करवाने चले थे, मगर इन्होंने इस बात को जानने की ज़हमत गवारा नहीं की कि इस निकाह की क्या शराइत और कवायद होते हैं। खैर, जब आसफ को पता चला वो अपने बाप बनने वाले हैं तो इनकी खुशी की इंतहा न रही। मौलवी साहब और इनकी बीवी की दुआएं लेते हम घर आ गए। हमारी नज़र में तो हमारा मसला हल हो चुका था और आसफ एक दूसरे की जिंदगी में दोबारा शामिल हो गए थे, मगर हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो गलती हमने इस लड़के पर भरोसा करके की उसका खमियाजा भुगतना अभी बाकी था। वो लड़का जो शख्स से शरीफ और मासूम नजर आ रहा था, उसने हमारे घर जाने के बाद अपनी बेइज्जती और तौहीन ख्याल करते हुए पूरे ऑफिस में ये बात फैला दी कि आसफ और नागिन के मोबैन तलाक हो चुकी है, और ये भी कहा कि हम लोग इसे हलाले के लिए आमादा कर रहे थे। बच्चे की खुशी में आसफ मुझे मेके लेकर गए थे और वहाँ जाकर हमें 1-2 दिन लग गए। 2 दिन बाद जब मैं ऑफिस गया तो लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि इन्होंने नागिन को तलाक दे दी थी। तब आसफ को बड़ी हैरत हुई कि ये बात सबको कैसे मालूम हुई। फिर इस लड़के की नौकरी छोड़ने की खबर इन पर यह बात वाज़ह कर दी कि इसी आस्तीन के सांप ने इसको डसा है और आपस में इनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई हैं। अब लोग हमारे बारे में बातें करने लगे। हम दोनों के मुबैन तलाक हो चुकी है, मगर हम फिर भी साथ रह रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मौलवी साहब हमारे तमाम मामलात के गवाह थे। फिर मैं भी उम्मीद से थी, मगर आसफ सबसे ज्यादा रौब शख्सियत थे। इन्होंने जल्दी मामलात पर काबू पा लिया, मगर पहुँचते पहुँचते ये खबर मेरे मेके तक पहुँची तो एक तूफान बर्पा हो गया। अम्मा अब्बा भी हम पर शक कर रहे थे, क्योंकि उस दिन मेरी हालत देखकर
وہ بار بار سوال کر رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ تب میں نے امی ابو کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی اور کہا کہ ہمارے مابین جو معاملات ہوئے تھے وہ خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً مفتی صاحب کوئی فتویٰ دیتے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کا کہتے، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے اس سزا سے بچا لیا جو ہر طلاق دینے والے مرد کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس بات کو گزرے اب 5 سال ہو گئے ہیں۔ ہم ایک بیٹے اور بیٹی کے والدین بن چکے ہیں، مگر آصف اب بھی اپنی غلطی پر نادام ہے۔ کہتے ہیں اگر تم مجھ سے دور چلی جاتی تو میں اپنی زندگی میں دوبارہ جی نہ پاتا۔ خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں تمہاری محبت کا حقدار اب بھی ہوں اور تمام عمر رہوں گا۔